Assalamu alaikum. Let's say you've decided to pursue Australia as a study option. Maybe आपने personal research से या फिर referrals से you have identified कि आपने ऑस्ट्रेलिया को pursue करना है as a study option. या हो सकता है कि आपको किसी consultant ने suggest किया हो कि ऑस्ट्रेलिया को भी आप pursue कर सकते हैं. तो question is कौन सी डिग्रीज़ आपको परस्यू करनी चाहिए और विच डिग्रीज़ डू यू वांट टू परस्यू, कोर्स वर्क डिग्रीज़ या रिसर्च डिग्रीज़. एक चीज़ रियलाइज़ कर लें कि इफ़ ए कंसल्टेंट सजेस्टेड यू टू परस्यू योर एप्लीकेशंस फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि दे आर सेंडिंग यू डाउन द कोर्स वर्क डिग्रीज राउट, और दे मेक दीज रिकमेंडेशंस फॉर अ रीज़न. जब भी कोई कंसल्टेंट आपको ऑस्ट्रेलिया या यूके पढ़ने का सजेस्ट करे, रियलाइज, अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज द फैक्ट कि कंसल्टेंट्स गेट पेड कमीशंस बाय यूनिवर्सिटीज़ इन दीज कंट्रीज़, और दे try and help these universities get more students. It doesn't necessarily mean it's a bad thing, लेकिन it does say कि you should keep your eyes and ears open, or you should do your due diligence. And that's exactly what this video will do as well. Information के through आप इस सारे scheme के against you can work. Coursework degrees generally speaking, coursework degrees are easier to get into. Research degrees के अंदर ज़्यादा extensive vetting processes होते हैं. तो again this does not suggest कि research degrees जो है वो ज़्यादा superior हैं as compared to coursework degrees. Both offer completely different routes to two different destinations, or two different career types. So probably a better question to ask is, who are these coursework degrees meant for? मास्टर्स की हम बात करें, सो कोर्सवर्क मास्टर्स डिग्रीज़ के अंदर आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं, और 3 of these semesters have coursework, और कोर्सवर्क से मुराद ये है कि हर सेमेस्टर के अंदर 3 से 4 आपके कोर्सेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगी वगैरह वगैरह. 4th सेमेस्टर के अंदर आपका कोर्सवर्क भी होता है, और देयर इज़ एन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना स्किल सेट किसी इंडस्ट्री प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आपने डेटा साइंस पढ़ी हुई है, और आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर टुगेदर इन अ टीम और ग्रुप of few students, आप एक इंडस्ट्री मेंटोर के साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं. वो द इंडस्ट्री मेंटोर वगैरह वगैरह, दे माइट गिव यू ए डेटा सेट जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. दे माइट गिव यू अनदर प्रॉब्लम लाइक मे बी ऑप्टिमाइज पाइपलाइन, फिगर थिंग्स आउट वगैरह वगैरह. लेकिन ये है कि देयर इज़ अ डिफाइंड प्रॉब्लम, मेंटोर डिफाइन करता है इंडस्ट्री मेंटोर, एंड यू वर्क ऑन इट इन अ टीम. सिमिलर इज़ द केस विद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वट एवर द heck it is. If you have identified a course, check your course website, scroll through the page, course plan पढ़ें, courses क्या हैं उसके अंदर वो पढ़ें, और उसके अंदर आपके potential job titles भी लिखे हुए होते हैं, so you get clarity. Course completion के बाद coursework degrees के अंदर you go for jobs in companies, so that's industry. Coursework degrees के अंदर, that's exactly the reason why coursework degrees have a more applied approach. You learn about concepts, tools, software and hardware, whatever is required for the job, they prepare you with that. So basically, coursework degrees are there to help you get your foot into the door, into the industry. Particularly अगर आप किसी, let's say किसी और background से आ रहे थे and you were switching, this organized curriculum and tools and concepts, they really help you move past the huge obstacle initially, which is often the question कि भाई मैं start कहाँ से करूँ. तो they definitely help there. लेकिन अगर आपने किसी अपने undergraduate के discipline के अंदर से relevant ही masters करें, then obviously masters is a bit more advanced and it's focused on one of the courses you studied in those bachelor's degree courses. Research degrees के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर research degrees mostly they don't have assignments, courses वगैरह. आप एक thesis की तरफ काम करते हैं, you identify a specific problem,
or you work towards a thesis on that problem. So during the process you may publish 1 or 2 research papers, लेकिन it's not a requirement. Common mistake is to assume कि भाई research degrees are only there to get you to professor का role या to get you into academia. That could not be more wrong, and again it depends on your goals. And here's why. Let's say example देख लें. Let's say आपने undergrad के अंदर CS पढ़ी थी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी. उसके अंदर आपने कुछ कोर्सेज डेटा साइंस के पढ़े होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह डेवलपमेंट. लेट्स से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, उसके अंदर आपने कुछ कोर्सेज मेंटेनेंस के पढ़े होंगे, कुछ कोर्सेज डिज़ाइन वगैरह मुख्तलिफ टाइप की टाइप्स ऑफ कोर्सेज आपने पढ़े होंगे. और you've identified मास्टर्स करने के टाइम पे कि आउट ऑफ ऑल दोज कोर्सेज यू वांट टू परस्यू डेटा साइंस, और अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, लेट्स से आपने डिज़ाइन इंजीनियरिंग परस्यू करना डिसाइड किया. लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज विद इन दी सब डिसिप्लिन्स एज वेल, फिर परस्यूइंग ए रिसर्च डिग्री माइट मेक मोर सेंस. लेट्स से आपने मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, एंड in that case definitely having a thorough understanding would help you land your dream role. Let's say न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर स्पेसिफिकली आपने अपने आप को चीता बनाना है, जो कि डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सेट है. डेटा साइंस की कोर्सवर्क डिग्री वुड गेट यू टू डेटा एनालिस्ट वगैरह के रोल, लेकिन इफ़ यू वांट टू परस्यू ए स्पेसिफिक एरिया लाइक दिस, तो रिसर्च डिग्री टेक्स यू बियॉन्ड सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, और बेसिकली इट सेट्स यू अपार्ट. नोट करें कि ये वाली अप्रोच इज़ यूजफुल व्हेन यू आर टारगेटिंग कंपनीज लाइक मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, कोई स्टार्टअप, एआई वाला स्टार्टअप, या लेट्स से सीसाइरो. इट्स एन इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे इनोवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर स्पेसिफिक स्किल सेट कैन रियली हेल्प यू सेट यू अपार्ट अमंग कंपटीशन. अगर आपको ज़्यादा नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको बस इतना पता है कि मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ या डेटा एनालिस्ट का रोल मैं करना चाह रहा हूँ, एंड आई एम फाइन विद इट, जेनेरिक, या लेट्स से आपने डिज़ाइन इंजीनियर का रोल, लेट्स से यू वांट टू लैंड देयर, फिर कोर्सवर्क डिग्री माइट वर्क फॉर यू. अगर आपकी इंक्लिनेशन है एकेडेमिया या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू प्रॉब्ली अ पेटेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एन आइडिया, समथिंग लाइक दैट, तो यू माइट वांट टू परस्यू ए रिसर्च डिग्री. लेकिन नो कि जब आप रिसर्च डिग्री कर रहे होते हैं, इट रिक्वायर्स थीसिस राइटिंग, और इफ़ यू प्लान टू वर्क टुवर्ड्स सपोर्टिंग योर सेल्फ, योर फीस बाय वर्किंग पार्ट टाइम, रिसर्च डिग्रीज माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन. कोर्सवर्क डिग्रीज उस केस में रिलेटिवली ईजियर होती हैं. तो फाइनेंसिंग रिलेटेड वीडियोज़ डेफिनेटली ड्यू हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग वीडियो, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग video. So tell the algorithm that you want to see those videos by liking this video and by subscribing to the channel. Or hopefully I'll be back in a week or in a couple of weeks. I'm also working on my research analysis vagara. So I'll try to come back in a week or in a couple of weeks. Hopefully it's not 7 months like it was before. Then I'll see you again.